Guys, we'll wait for others to join and then we'll start. We are waiting for 3 minutes more, guys, and then we'll start. Anyone has any questions till for the topics which discussed till today? Guys, 1 more minute. We are waiting, and then we'll start. Okay, guys, let's start. It's already 14:05, so we can start. Before we proceed, anyone has any doubt for the topic we have covered till yesterday? Today also, we are not going directly for Azure. We are still discussing our on-premises infrastructure, which will give you a better understanding. So anyone has any questions, please do let me know.
One more thing, guys, I have some power cut issue here. I'm using my mobile's hotspot data. So if you feel any lagging, if you're not able to hear me anything, do let me know. So I could look for something else, or I could repeat myself. So till yesterday, we discussed about servers. Why do we use servers? Why do we have servers? We have end users here. Then we have some application. To run that application, we require servers. This is what we have been discussing. This is, let's say, my application. Again, we'll take the same name. So you guys could remember something, you could relate something. We were discussing Swiggy app. So let's say that we have an application similar to Swiggy, or let's say we are deciding Swiggy model. To run that Swiggy, we will have one website. To run that website, we will require few servers, approximately 50 or 60 servers here, just to run one application. Because we want high availability. When I say high availability, it means कि कोई एक भी डाउन हो जाए, किसी एक में कुछ हो जाए, 2-4 सर्वर्स डाउन हो जाए, एप्लीकेशन चलती रहनी चाहिए। ठीक है, हियर जस्ट वी आर थिंकिंग फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, एक या दो उसके लिए एक सर्वर काफी होता है, बट व्हेन यू आर being hit by thousands of people at a time, you will require these many servers. So I explained it to you कि यहाँ पर ऐसा होता है, और इस एक ऐप को चलाने के लिए approximately 1000 servers जो है होते हैं. One more example I could give you, forget Swiggy, एक और example मैं देता हूँ आप लोगों को. Let's say I am sure all of you are familiar with there was one app named Face app. अगर किसी को याद हो तो Android और Apple दोनों में आता था ये. It is still there. So there's an application called Face app. फेस ऐप के लिए भी जो है, इतने छोटे से एप्लीकेशन के लिए भी thousands ऑफ सर्वर्स चाहिए होते हैं उनको रन करने के लिए. बट हाउ दे वर्क, आई क्विकली एक्सप्लेन दिस मॉडल. अगेन वी आर डिस्कसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए मैं थोड़े अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को ये कर रहा हूँ, बता रहा हूँ. So when we go to cloud and when we discuss these things, you guys could correlate this. So let's say these are my users, end users, जिन्होंने मोबाइल पे मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है. सो मोबाइल पे जो फेस ऐप का पूरा लोगो दिखता है, कलरफुल दिखता है, अपलोड का ऑप्शन दिखता है, दैट इज कॉल्ड माय फ्रंट एंड. तो फेस ऐप के एक फ्रंट एंड पे मुझको कुछ सर्वर्स लगेंगे, जहां पर जितना भी काम वो बस आपके मोबाइल पे दिखाने का कर रहा है, दैट इज कॉल्ड माय फ्रंट एंड. सो दिस इज माय फेस एप्स फ्रंट एंड सर्वर्स. फ्रंट एंड सर्वर्स में भी 50 सर्वर हो गए सिर्फ फ्रंट एंड को होल्ड करने के लिए, जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे दिखता है. एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फेस ऐप. तो फेस ऐप का जो ये दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन दिख रहा है, उसमें जो एडिट वगैरह का ऑप्शन दिख रहा है, पिक्चर खींचने का ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड. दैट इज ओनली योर फ्रंट एंड. आर यू गाइस फेमिलियर विद दिस ऐप, फेस ऐप? मतलब एग्जांपल देने का फायदा भी होना चाहिए. No, no, I'm not. Yes. Okay. So this is an application जहाँ पर एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन है, बहुत फेमस हुआ था. Here you click your picture and you upload it, or if you are uh, you can convert it. थोड़ा सा एक पिक्चर खींच लो, उसको आप अपने आप को थोड़ा सा यंग वाले इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, और you could see your older version. इतना सा ही काम था इसका, बट Oh काफी yeah, फेमस yeah, हुआ था. I You remember you now. I remember it, right? remember now. हाँ, so that is the Yeah, app yeah, we are yeah. talking about. So उसका जो Got it, सिर्फ got it. फ्रंट एंड है, बेसिक, जहाँ पर सिर्फ आपको दिखता है कि इतने फीचर्स अवेलेबल है, इतने वेरिएंट अवेलेबल है, ये है, that is what we call front end. And this is not specific to that app. This is how applications are designed nowadays. स्विगी का भी मैंने बताया था, फ्रंट एंड वही होगा. ठीक है, जो दिख रहा है बस उतना होस्ट करने के लिए भी आपको 50 और 100 सर्वर्स लगेंगे, एक उतना छोटा सा होल्ड करने के लिए. देन देयर इज इंजन सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर. बैकएंड में जो होता है इसके, दिस इज कॉल्ड 3 tier एप्लीकेशन. ये वर्ड आप लोग काफी बार सुनोगे इंटरव्यूज में, और मे बी व्हेन वी डिस्कस क्लाउड, तब भी आप लोग कई बार सुनोगे. सो व्हाट इज अ 3 tier एप्लीकेशन, उसको हम लोग आज समझ लेते हैं. अगेन ये सब ओवरव्यू कर रहे हैं हम लोग, जब क्लाउड पे जाते हैं हम लोग, व्हेन वी गो टू अज्योर, तब हम बेसिक्स, कंपोनेंट्स वगैरह सब अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं. दिस इज आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो हाउ दिस एप्लीकेशन works. So this is the front end. To have that front end, to hold or host that front end, I will require plenty of servers. In this example, let's say 50 servers. तो यहाँ तक क्या हो रहा है, फ्रंट एंड सर्वर से सिर्फ मेरा एप्लीकेशन दिख रहा है आप लोगों को. You can see that application, that option कि click here which will upload or turn on your camera. इससे कैमरा ऑन हो जाएगा. When you click the picture, उसके आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ फ्रंट एंड कॉन्फ़िगर किया है. So what is the next method of configuration? Then there is called backend. ये जो है सेकंड वाला मेथड होगा, ये होगा बैकएंड सर्वर. और आई एम जस्ट कॉलिंग इट सर्वर, दैट डज नॉट मीन एक ही सर्वर होगा. बैकएंड में भी मल्टीपल सर्वर्स होंगे. क्यों?
क्योंकि विदाउट बैकएंड भी ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन शट डाउन हो जाएगा, आप सिर्फ देख पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। अगर एक ही सर्वर पे मैं पूरा रन करूंगा ना, लेट्स से फ्रंट एंड पे एक ही सर्वर है और बैक एंड पे भी एक ही सर्वर है, और वो एक सर्वर को कुछ भी हो गया, जितना हम देखते आए कि फैन भी चला गया, उसका खराब हो गया, रैम खराब हो गया, कुछ भी चला गया, तो पूरा का पूरा मेरा एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। क्योंकि अगर ऐप डाउन ये हो जाएगा, क्रैश होगा, डाउन होगा बार बार, तो रिव्यूज खराब आएंगे, रिव्यूज खराब आएंगे तो लोग उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे तो मुझको नंबर ऑफ मेरा इंस्टॉलेशन वो नहीं बढ़ेगा, एंड देन आई विल नॉट गेट एडवर्टाइजमेंट, जो मेरा पूरा बिजनेस रेवेन्यू मॉडल है। इफ आई डोंट गेट एडवर्टाइजमेंट आई विल नॉट अर्न। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी हो, ताकि लोग अच्छा एक्सपीरियंस फील करें, एंड देन दे ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करें। जितना माउथ पब्लिसिटी होगा उतना यूज करेंगे, जितना यूज होगा मेरा डेटाबेस बढ़ेगा, जितना डेटाबेस बढ़ेगा उतना मेरे पास एडवर्टाइजर्स आएंगे, और एडवर्टाइजर्स आएंगे, सॉरी गाइस आई एम सफरिंग फ्रॉम माउथ अल्सर, सो excuse the pronunciations and if I'm stopping somewhere, ठीक है। सो जितने भी एडवर्टाइजर्स आएंगे मेरे पास, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल पे मी, कोई भी फ्री में ये नहीं होता। सो दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज माय रेवेन्यू मॉडल। जितने भी एडवर्टाइज वाले आते हैं वहीं से मेरा रेवेन्यू। एंड यूजर्स व्हिच आर डाउनलोडिंग माय ऐप, आर दे पेइंग मी एनीथिंग? स्विगी का एक डिफरेंट ये मॉडल है, तो ठीक है, स्विगी का एक अलग है, बट स्विगी भी अगर बार बार क्रैश होने लग जाए, सो नो वन विल यूज इट। लोग उसको डाउनलोड करना बंद कर देंगे, उस पे रिव्यूज खराब देंगे, एंड देन होटल्स उनसे टाइप करना कम कर देंगे, जोमेटो और सम अदर ऐप विल टेक ओवर देम। तो हाई अवेलेबिलिटी जो है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी देना, ये इनका रिक्वायरमेंट है। जितना ज्यादा अच्छा फीडबैक होता होगा उतना एडवर्टाइज वो लोगों को मिलेगा, और एडवर्टाइजमेंट ही इनका जो है रेवेन्यू का मॉडल होता है ज्यादा से ज्यादा। सो फॉर दैट मैटर, बैकएंड में भी मुझको उतने ही सर्वर लगेंगे, एंड देन देयर इज अ थर्ड टियर व्हिच इज कॉल्ड डेटाबेस। डोंट गेट कंफ्यूज, ये नहीं समझ में आ रहा था, आई विल एक्सप्लेन दिस, बट मुझको फिलहाल सिर्फ आप लोगों को थ्री टियर ये बताना था। सो हाउ इट वर्क्स, थ्री टियर एप्लीकेशन कैसे काम करता है। सो दिस इज माय फ्रंट ऐप और दिस इज माय फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब हुआ कि ये सारे सर्वर्स, फ्रंट एंड सर्वर्स जो है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर माय यूआई, जो आप लोगों के मोबाइल पे दिख रहा है ना, और फेस ऐप को इस सेशन के बाद आप जो है डाउनलोड करके देखो एक बार, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जितना भी कुछ दिखता है, टू होस्ट दैट you require front end of your application. So this is the front end we are talking about, and then we have back end. Now what back end does, see, एक सर्वर जो है मैंने बताया, उसमें हम लोगों ने IIS मोड इंस्टॉल किया था, and then we could host an application, we could host our website on that. So वो एक फीचर था, ठीक है, that was one of the features of that server. ऐसे बहुत सारे फीचर होते हैं। सो उसी सर्वर का एक फीचर हो सकता है जो पिक्चर्स में एडिशन करके दे। फेस ऐप कैसे काम कर रहा है कि आप एक पिक्चर अपलोड कर रहे हो, लेट्स से यू आर इन योर 40s, यू आर अपलोडिंग अ पिक्चर एंड यू वांट टू सी योरसेल्फ यंगर, तो आप उसको अपलोड करते हो, और उस पिक्चर्स में कुछ एडिट करना पड़ेगा, बहुत सारा उस पर बैकग्राउंड में काम होगा। लाइक जो एडिशन आप करते हो ना अपने मोबाइल पे, थोड़ा बहुत एडिट करते हो, उसका कलर चेंज करो, ये बेसिक चीजें जो आप लोग करते हो, सेम चीजें एक सर्वर लेवल पे होगी, बिकॉज वो उस एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी है, दैट्स व्हाट इट दैट एप्लीकेशन डज। तो वो सब कहां पर होगा, दैट आई कुड डू ऑन द सेम सर्वर जिस पे मैंने अपना फ्रंट एंड एप्लीकेशन होस्ट कर रखा है ना, जहां से आप लोगों को सर्विस मिल रही है, जहां पे मेरा ये है एप्लीकेशन। गाइस कैन यू हियर मी? Yes. Yes, sir. You can hear me, Yes. no? Okay. Maybe because power is back, maybe my Wi-Fi is shifted and switched, so just ask. Okay, so जितना भी कुछ होगा, I could configure that on the same server, मतलब इसी सर्वर पे मैं अपनी वेबसाइट भी रख सकता हूँ, इसी सर्वर पे। एंड व्हेन आई एम सेइंग सर्वर, अंडरस्टैंड, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है, कहीं भी एक सर्वर नहीं होता है, ठीक है। सो इसी सर्वर पे मैं अपनी वेबसाइट भी रख सकता हूँ, और इसी सर्वर पे मैं उस एप्लीकेशन के उस फीचर को भी रख सकता हूँ, जहाँ पे आपकी पिक्चर पे वो पूरा काम करे, उसको एडिट करे, उसको यंग से ओल्ड बनाए या ओल्ड से यंग बनाए, जो कुछ है वो पूरा प्रोसेस आई कुड होल्ड इट हियर। बट इससे क्या होगा, मेरे सर्वर पे काफी लोड आएगा, बिकॉज आप फ्रंट एंड भी यहीं से कर रहे हो, बैक एंड भी यहीं पर हो रहा है। सो आई वांट टू अवॉइड दैट, वो लोड मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। ज्यादा लोड आएगा, मेरा सर्वर शट डाउन हो जाएगा, सर्विसेज ये हो जाएगी, देन अगेन वो रेवेन्यू मॉडल वगैरह वो सारा पिक्चर में आएगा। इसलिए मैंने क्या कर रखा है, हर चीज को डिवाइड कर रखा है। सो दिस इज माय फ्रंट एंड एप्लीकेशन, जहां से सिर्फ मेरा वेबसाइट होस्ट हो रहा है। नाउ लेट्स से वन ऑफ यू, आप में से किसी ने मेरा एप्लीकेशन को मोबाइल पे इंस्टॉल कर लिया, हियर दे ओपन दैट कैमरा एंड दे क्लिक देयर पिक्चर और दे अपलोड अ पिक्चर फ्रॉम गैलरी, ठीक है। ये सब यहाँ पर वो फीचर जो है अपलोड करने का, क्लिक करने का, वो सब जो है यहाँ से फ्रंट एंड की मल्टीपल सर्वर से वो फीचर आपको मिल रहा है। ये सारे सर्वर मिलके उतनी एक सर्विस दे रहे हैं,
दैट कैप्चरिंग अ कैमरा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे सर्वर्स मिलके किसी एक यूजर को ये कर रहे हैं। मे बी दिस यूजर इज कनेक्टेड विद दिस सर्वर, मे बी दिस यूजर इज कनेक्टेड विद दिस सर्वर, ये वाला इससे कनेक्टेड है। एंड अगेन आई टोल्ड यू कि एक यूजर एक सर्वर नहीं होता है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे 10,000 यूजर्स है एट अ टाइम, क्योंकि मेरा जो है ग्लोबली रनिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, लैक्स ऑफ यूजर्स आर हिटिंग एट अ टाइम। तो इस हिसाब से 100 यूजर्स इस सर्वर पर चले गए, 100 यूजर्स यहाँ पर चले गए, वो सब हम देखेंगे कि ये डिवाइड कैसे होता है, कि इस सर्वर को कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ऑलरेडी 100 आ गए, नेक्स्ट इस पे भेजना है। दैट वी विल सी व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग क्लाउड। बट नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये सारे मिलके इन सबको सर्विस दे रहे हैं। सो व्हेन आई एम सेइंग सर्वर यूजर, आई एम नॉट जस्ट रेफरिंग कि एक सर्वर और एक यूजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जस्ट इमेजिन दैट पिक्चर इन योर माइंड। सो लेट्स से दैट वन ऑफ यू इज ट्राइंग टू अपलोड वन पिक्चर। तो यहाँ से कोई सर्वर ने वो सर्विस दे रहा है, यहाँ से आप वो सर्विस अवेल कर रहे हो, यू आर क्लिकिंग द पिक्चर और यू आर अपलोडिंग द पिक्चर फ्रॉम योर गैलरी। इट इज डन हियर, पिक्चर यहाँ तक आ गई, ठीक है। पिक्चर यहाँ किसी एक सर्वर पर आ गई, यहाँ पर आपकी पिक्चर आ गई। नाउ दिस इज नॉट अ जॉब ऑफ दिस सर्वर टू एडिट दैट पिक्चर। अब इसका क्या काम होगा, उसको जस्ट पास ऑन करना हमारे बैकएंड सर्वर्स पे। इस सर्वर पे जो यहाँ करेगा, इस सर्वर से यहाँ करेगा, इस सर्वर से यहाँ पर, अगेन यहाँ पर भी सेम होगा। ट्रैफिक कैसे राउट हो रही है, विल सी दैट लेटर, कि कौन से सर्वर पे कितनी ट्रैफिक जानी चाहिए, वो इनको पता होता है। विल कॉन्फ़िगर दैट कि कैसे ट्रैफिक कैसे जानी होती है। बट अंडरस्टैंड कि फ्रंट एंड का काम क्या है, सिर्फ आपको यूआई प्रोवाइड करना। व्हाट इज यूआई? यूजर इंटरफेस। कि आपको सिर्फ यूजर इंटरफेस जहां से आप पिक्चर खींच सकते हो, लेकिन वो जो पिक्चर पे एडिटिंग का काम हो रहा है ना, वो इसी सर्वर पे नहीं हो रहा है। एक रीजन है कि मैं इस पे ज्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एडिटिंग के लिए मुझको कोई अलग टाइप के सर्वर चाहिए। मे बी एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए मुझको विंडोज का सर्वर इज सफिशिएंट, लेकिन पिक्चर में एडिटिंग के लिए बहुत हैवी सर्वर चाहिए मुझको। तो यहाँ पर मे बी मेरे कुछ लिनक्स के सर्वर्स है, कुछ विंडोज के सर्वर्स है, ये भी हो सकता है। बट आई विल हैव बैकएंड सर्वर्स डिफरेंटली। तो ये हुए मेरे फ्रंट एंड सर्वर्स, ये हुए मेरे बैकएंड सर्वर। नाउ बैकएंड सर्वर का क्या काम है, जो पिक्चर यहाँ से आई है उसको पूरा उसके ऊपर काम करना, एडिट करना, आपने जो भी फीचर्स वहां पर सेलेक्ट किए थे, यंग टू ओल्ड, ओल्ड टू यंग, वो सारा प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर होता है। और ये बहुत फास्ट होता है। यू जस्ट इमेजिन कि आप एक पिक्चर क्लिक करके बैठे हो, आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझको ओल्ड टू यंग चाहिए या यंग टू ओल्ड चाहिए, और उसमें वो ऐप आपको बोल रहा है ठीक है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिक्वेस्ट रिसीव्ड, विल गिव यू द आउटपुट आफ्टर हाफ एन आवर। सरकारी बैंक की तरह कोई, कितना हाउ लाइकली विल यू यूज दैट एप्लीकेशन? एक दो बार यूज करोगे, उसके बाद किसके पास टाइम है? ये जो सोशल मीडिया के लिए ये करते हैं लोग, इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लाइव रिजल्ट चाहते हैं। सो नाउ जस्ट कीप इमेजिनिंग दैट, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस तो आप लोगों को पता चले कि क्यों इतने छोटे से एप्लीकेशन के लिए थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स क्यों लगते हैं। और ये इतने से एप्लीकेशन से, तो जब हम एक्चुअल में एंटरप्राइज एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे ना, बैंकिंग के, हेल्थ केयर के, इंश्योरेंस के, सेल्स फोर्स वगैरह, तब कितना क्रूशल काम हो जाता है, जहां पर डेटा, ये तो फिर भी एटलीस्ट फन के लिए है, ठीक है। जहां पे पूरा डेटा ड्रिवन होता है, वो कितना क्रूशल हो जाएगा काम। तो वहां पर तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स में लगेगा सर्वर्स, जस्ट सो यू कैन इमेजिन दैट। इसलिए मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लेट्स से यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स है, इतनी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही है, यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पर जा रही है, तो इसको इंस्टेंटली काम करना है। तो एक एक सर्वर पर 100 पिक्चर्स, 200 पिक्चर्स एट अ टाइम आ रही है, और उसको सबको इंस्टेंटली रिप्लाई करना है। अब ये डायरेक्ट यूजर को रिप्लाई नहीं करेगा। अगेन ये सर्वर जहां से इसको रिक्वेस्ट आई थी, ये वहीं पर उस पिक्चर को अपलोड, उस पिक्चर पे एडिट करके ये काम कर देगा और यहाँ पर भेज देगा। एंड देन वापस वो यूआई का काम है कि आपको जो है रिजल्ट जो है आपके मोबाइल पे प्रेजेंट कर देगा, डाउनलोड का ऑप्शन देगा। इज इट क्लियर? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड इट टिल हियर, फ्रंट एंड और बैक एंड? Yes, Sohail. Yes, Sohail bhai. Anyone has any questions, any doubt, do ask. डोंट थिंक कि यार ये बेसिक क्वेश्चन है और आई विल गूगल इट लेटर, कुछ भी ऐसा ये नहीं है। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेट मी नो। So I hope it is clear, guys, right? Okay, so we'll proceed. Now, this is my third year of application. This is my database. You guys can hear me, right? Yes, yes. Okay, thank you. So yes, this is your third year of application. Now, what is the third tier of application? It is your database, nothing else. It's your database. अब database में क्या होगा? सेम एप्लीकेशन को फेस ऐप से हटा के आप इंस्टाग्राम सोच लो। इंस्टाग्राम का रील जो है उसको ये कर लो। इंस्टाग्राम का रील भी ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर देता है। यहाँ पर आपको कोई वो फीचर देता होगा जहां से आप कोई वीडियो वगैरह प्ले करते हो, आप अपना वीडियो अपलोड, कैमरा ऑन करते हो, यहाँ पर वीडियो अपलोड होता है आपका, यहाँ पर उस वीडियो का एडिटिंग होता है, जो भी बैकग्राउंड में एडिटिंग वगैरह होता है, देन आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है वापस। बस इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर क्या है, इंस्टाग्राम आपको
ये सारे वीडियोस को सेव करने का भी ये करता है। तो सेव हो गया कहीं पर, तो सेव हो गया, राइट? फेस ऐप इज समथिंग जो फेस ऐप ऐसे कनेक्टेड नहीं है कि मैं फेस ऐप पे आपका एक अकाउंट है जिसमें आप सब कनेक्टेड हो, जहाँ पे आप अपनी जो कन्वर्ट की हुई इमेजेस सबके साथ शेयर कर रहे हो, वो फेस ऐप में नहीं है। तो फेस ऐप को कोई खास डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? बट एन एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम ये दो फीचर्स तो करता ही है आपके साथ, साथ में वो आपको स्टोरेज भी दे रहा है। ये पूरा जो स्टोरेज है वो आपको दे रहा है। बस यहाँ पर क्या दे रखा है, अकाउंट के बेस पे डिवाइड कर रखा है। आपके नाम के हिसाब से आपका अकाउंट होगा तो उतना छोटा सा स्पेस आपको दे रखा है। तो आपके जितने भी पिक्चर्स वगैरह वो यहाँ पर अपलोड करेगा और उसको पब्लिश करेगा ग्लोबली, जिसको भी आप दिखाना चाहते हो, दैट इज थ्रू योर यूजर नेम। जो भी यूजर नेम वगैरह होता है आपका, किसी का भी, जैसे यहाँ पर आई कुछ से बशारत है, इब्राहिम है, मिरांडा इज देयर, अकीब इज देयर, so they could have their name, their username, their identity on Instagram, and using that we could see those pictures or video or reels which they have allowed us to see. तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सेव हो गए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। it gives you a front end of your UI, your reels of your Instagram application. You use it, you upload that video, it comes here, it comes to this front end server, से back end पे जाता है, back end server, it is known as back end server, it is also known as application server, it is also known as engine server। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। सो यहाँ पर जो है पूरी प्रोसेसिंग होती है वीडियो की, उसमें जो बैकग्राउंड में सॉन्ग ऐड करना है, वॉटेवर जो भी इनपुट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था कि इन इन दिस वीडियो आई वांट दिस सॉन्ग, आई वांट दिस टाइप ऑफ बैकग्राउंड, इसको थोड़ा ब्लर करना है, इसको थोड़ा सनी लुक देना है, व्हाटएवर इट इज। आई एम श्योर यू गाइस आर यूजिंग रील्स वगैरह यूज करते हो तो पता होगा जितने भी फीचर्स है, व्हाट डू यू कॉल इट, फिल्टर्स यू कॉल इट, राइट? फिल्टर्स होते हैं उसमें शायद। सो फिल्टर्स वगैरह व्हाटएवर इनपुट यू हैव सेलेक्टेड हियर, ये डेटा और वो वीडियो, ये सब का पूरा यहाँ से जो है मूव होता है किसी एक बैकएंड सर्वर पे, एंड देन उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर बैकएंड सर्वर पे। एंड देन इन दिस टाइम इसका एक कॉपी आपको भी जाता है, सो यू कुड सी इट साइमल्टेनियसली, एक कॉपी इसका डेटाबेस पे भी जाता है, एंड इट गेट्स स्टोर्ड अगेंस्ट योर आईडी। जो भी आपका आईडी होगा, जो भी आपने आपको स्पेस दे रखा होगा इंस्टाग्राम ने, जो भी आपका होगा वहां पर इट गेट्स स्टोर्ड। सो दिस इज द डेटाबेस सर्वर। I hope this is clear as of now. Yes, Solmai. Okay, so in this 3-tier application, any of the server if it goes down, पूरा का पूरा आपका application नहीं चलेगा। Let's say front end server ही कोई down है। Now when I say server, इसका मतलब ये 50 सर्वर में से कोई एक नहीं है, ठीक है? 50 सर्वर में से कोई एक डाउन हो गया, स्टिल देयर आर रिमेनिंग 49 सर्वर्स जिससे आपको सर्विस मिलती रहेगी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि लेट्स से आप इस सर्वर से कनेक्टेड हो और ये सर्वर डाउन हो गया। सो जस्ट फॉर दिस यूजर आई एम टॉकिंग अबाउट कि इस पर्टिकुलर यूजर के लिए या कुछ ऐसा हो गया कि ये पूरे 50 सर्वर की कनेक्टिविटी में कुछ इशू हुआ और पूरा का पूरा ऐप डाउन हुआ। बड़े से बड़ा ऐप हो डाउन हो जाता है। नेटफ्लिक्स जैसा जायंट जो थाउजेंड्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड 40-50,000 सर्वर्स यूज करते हैं, वो भी ऐप डाउन होता है। अमेजॉन डाउन होता है कई बार, फेसबुक डाउन होता है, यूट्यूब डाउन होता है, व्हाट्सएप कई बार डाउन होता है, क्रैश हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर जस्ट बिकॉज यू हैव 100 सर्विसेज का मतलब आपकी ऐप कभी डाउन होगी ही नहीं। अल्टीमेट एम होता है कि मिनिमम से मिनिमम डाउन टाइम हो, बट टेक्निकल चीजें है, डाउन टाइम हमेशा कभी ना कहीं कुछ ना कुछ होने ही वाला है, वो होता रहेगा। सो लेट्स से यू आर कनेक्टेड टू दिस सर्वर एंड दिस सर्वर इज फॉर सम रीजन दिस सर्वर इज डाउन। आप फिर से उसको डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो किसी और सर्वर पे, तब तक क्या होगा, तब तक आपको क्या दिखेगा, ये फ्रंट एंड आपका दिखेगा ही नहीं। You're trying to use WhatsApp service, or you're trying to use Face app, or you're trying to use Instagram, and in this time not necessary के मोबाइल पे ही हो। Instagram आप आई थिंक यहाँ से भी यूज कर सकते हो, ब्राउजर से भी यूज कर सकते हो। सो यू आर गोइंग फॉर Instagram.com और वेब पेज खुल ही नहीं रहा है, तो आपका बैकएंड सर्वर पूरा का पूरा अप एंड रनिंग है। दीज इंजन सर्वर्स दे आर रेडी के भाई ठीक है, सेंड मी वीडियोस, आई एम रेडी टू एडिट, आई एम रेडी टू डू एडिटिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन कोई काम का है ये पूरा का पूरा सेटअप, अगर यूजर्स आपके फ्रंट एंड को ही ये नहीं कर पा रहे, एक्सेस कर नहीं पा रहे, तो ये बैकएंड सर्वर्स कोई काम के हैं आपके? ऑब्वियसली नहीं है, राइट? जितना अब तक हम लोगों ने देखा, इसमें बैकएंड सर्वर्स किसी काम के नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंड से कोई डेटा ही नहीं आ रहा है उनके पास, तो ये अप एंड रनिंग है, बट दोज आर ऑफ नो यूज। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा तो डेटाबेस सर्वर्स भी मेरे किसी काम के नहीं है। तो जस्ट बिकॉज इट इज अ 3-tier एप्लीकेशन, दैट डज नॉट मीन दैट वी कैन अफोर्ड टू लूज एनी ऑफ दिस। सारे साइमल्टेनियसली काम करेंगे। नाउ लेट्स सी माय बैकएंड सर्वर्स, ये वाला पूल जो है पूरा, ये सर्वर्स में किसी तरह का इशू हुआ और ये सर्वर्स नहीं चल रहा है, पूरे 50 सर्वर्स फॉर सम रीजन, कोई कनेक्टिविटी है, कोई नेटवर्क, सर्वर सारे ऑन है बट यहाँ से जो नेटवर्क कनेक्टिविटी थी वो लूज हो गई, किसी भी रीजन से ये वाला हिस्सा नहीं चल रहा बैकएंड का। तो आप लोग इसको एक्सेस तो कर पाओगे, इंस्टाग्राम की वेबसाइट तो दिखेगी, बट आप कुछ नया अपलोड नहीं कर पाओगे, कुछ भी ये नहीं कर पाओगे। क्यों अपलोड नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पर एडिटिंग हो ही नहीं रही है।
एंड एडिटिंग का ये मतलब नहीं है गाइस ओनली बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड सम फिल्टर्स इसलिए एडिटिंग होगी, नहीं। फेसबुक पे यू डोंट सेलेक्ट एनी फिल्टर और एनीथिंग, फेसबुक स्टिल विल डू एडिटिंग। क्यों करेगा एडिटिंग? आप उसमें 10-10 15-15 एमबी की पिक्चर्स अपलोड करोगे, कोई इसमें डीएसएलआर से खींचा हुआ पिक्चर अपलोड करेगा, कोई मोबाइल से खींचा हुआ, कोई आईफोन से खींचा हुआ, सबका फॉर्मेटिंग अलग होगा, हर चीज अलग होगी। फेसबुक अपना डेटाबेस वैसा नहीं चाहता है। सो व्हाट फेसबुक विल डू, दो यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी एडिटिंग, यू आर सिंपली अपलोडिंग योर पिक्चर्स। आज शाम की इवेंट का, मूवी का, कोई भी ये जो है आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, मूवी का या किसी डिनर का, फ्रेंड्स के साथ किसी भी तरह का मोमेंट यू गाइस आर अपलोडिंग, एंड यू आर नॉट सेलेक्टिंग एनी फिल्टर, एनी एडिटिंग, कुछ भी नहीं। बट फेसबुक विल स्टिल हैव दीज फीचर्स, उसके पास एडिटिंग इंजन सॉफ्टवेयर सब कुछ होगा, वो उसको अपने फॉर्मेट के हिसाब से एडिट करेगा। आपने तो 10-10 एमबी का एक पिक्चर अपलोड कर दिया, इट इज फेसबुक जॉब। इनके एडिटिंग यहाँ पर जो इनके एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई उस 10 एमबी के पिक्चर को डायरेक्टली जो है 50 केबी में कन्वर्ट कर देंगे और उसका क्वालिटी वैसा ही जो है मेंटेन करेंगे। बहुत हेवी और एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस यूज करते हैं, ये खुद इसको डेवलप भी करते हैं। सो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग एनी फिल्टर और एनीथिंग, दैट डज नॉट मीन कि एडिटिंग नहीं होने वाला है। एडिटिंग वहां पर भी होगा, एंड देन उसके बाद वो अपलोड कर देगा यहाँ पर, जहां से देन आप लोग भी देख सकते हो। कुछ एप्स है जो आपके वापस यूआई पे भी सेंड करता है, जहां से आप डाउनलोड करते हो, लाइक स्नैपचैट है आई गेस। स्नैपचैट में भी आप सेम फिल्टर वगैरह लगा के एक पिक्चर अपलोड करो, यहाँ पर वो एडिटिंग करेगा, उसके बाद यहाँ पर वो सेव करने का ऑप्शन नहीं देता है शायद, बट वो फ्रंट एंड पे वापस भेजता है। तो एडिटिंग सर्वर्स ये सब जो है बैकएंड सर्वर हर जगह हो गए। एंड आई टोल्ड यू ये सारा का सारा काम आप एक सर्वर से भी ले सकते हो, यहाँ से एक सर्वर से भी लिया जा सकता है सेम काम। नाउ आई विल ऑन माय अज्योर मशीन, और उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा फिर से, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो इसमें अगर मेरा ये बैकएंड वाला ये जो पूरा पूल है, इफ दिस इज डाउन, तो अगेन मेरा फ्रंट एंड का होके कोई मतलब नहीं है। आप फेसबुक तो मे बी ओपन कर पाओगे, लेकिन जैसे अपलोड पिक्चर पे क्लिक करोगे ना, आगे कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपलोड होने के लिए उसको एडिट होना जरूरी है, दैट इज हाउ इट हैज बीन प्रोग्राम। और मेरे एडिटिंग वाला जो पूरा सर्वर पूल है, जो मेरा बैकएंड ये है, सेकंड टीयर ऑफ माय एप्लीकेशन, ये पूरा का पूरा डाउन है। एंड लेट्स से दैट ये दोनों अप है और मेरा डेटाबेस डाउन है, तो डेटाबेस डाउन है तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ये पूरा कॉन्फ़िगर ही ऐसा किया है कि कनेक्टिविटी एक दूसरे से है, मैं पुरानी चीजें भी नहीं देख पाऊंगा, मैं नया कुछ अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब का एक साथ चलना, इट इज मस्ट एंड इट इज रिक्वायर्ड। तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों का रोल क्या होता है? आई एम श्योर दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विंडोज पे काम कर रहे हैं, जो बैकएंड बैकअप वगैरह पे काम कर रहे हैं, आई कुड से बशारत इज देयर, इसाक इज देयर, आई एम नॉट श्योर, बाकी जितना मैंने आप लोगों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है उस एक्सेल में, यू गाइस हैव बीन वर्किंग, थोड़ा बहुत जो काम कर रहे हो उनको पता है कि एग्जैक्टली इन सब के बीच की कनेक्टिविटी, इन सब के बीच का बैकअप, इन सब के बीच का नेटवर्क, इन सबको अपडेट रखना, कनेक्टेड रखना, ये सारा काम जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। वेयर यू कॉल योरसेल्फ विंडोज एडमिन, स्टोरेज एडमिन, नेटवर्क एडमिन, ये सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। और यही सारा काम किस तरह से इन इजी वे हम क्लाउड पे करने वाले हैं, दैट वी विल सी व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग क्लाउड। सो इज इट क्लियर टिल हियर? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड जितना कुछ हम लोगों ने किया यहाँ पर? अब तक कोई डाउट है? सो डू लेट मी नो, या कोई भी क्वेश्चन है जो कल किया हम लोगों ने उस पे, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो। व्हाट अबाउट अदर्स? All good. ओके, सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट फ्यू एप्लीकेशंस जो वेल नोन है। अब हम अगर थोड़ा एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा जो हमारे ऑफिसेज में यूज होते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि हाउ विल दे वर्क, उसमें कैसे बैकएंड वगैरह क्यों काम में होगा। तो आई क्विकली सिंपली वो जो मेरा होस्टेड एप्लीकेशन था उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, एंड देन विल सी कि उसमें हम कैसे बैकएंड वगैरह पे काम कर सकते हैं। Why would we require a 3-tier application over there? It is not always necessary to have a 3-tier application. अब जो उस दिन मैंने मेरा एक सर्वर ऑन करके बताया था, वो पूरा का पूरा सिंगल सर्वर पे, नॉट इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक सिंगल टीयर नहीं, पूरा सब कुछ सिंगल सर्वर पे ही है। टेक्निकली इट इज पॉसिबल, वी कुड डू दैट। एक ही सर्वर पे ना आप पूरी की पूरी आपकी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, उसी पे डेटाबेस रख सकते हो, उसी पे आपका जो भी कुछ कन्वर्टिंग जो है, कोई इंजन सर्वर है, कुछ कन्वर्ट कर रहे हो आप, बेसिक कर रहे हो, एक एक बेसिक सा फीचर समझ लो आप कि भाई मैंने एक सिंपल सा सर्वर बनाया है, इसमें कोई अपना पिक्चर जो है अपलोड करेगा तो उस पर बस एक फ्रेम, आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ पिक्चर अगेन एंड अगेन, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। इसमें कोई डेटा भी हो सकता है। आई हैव क्रिएटेड वन बेसिक सर्वर कि यहाँ पर आके कोई अपना पैकेज जो है टाइप इन करता है, तो मेरे पास बैकएंड में एक प्रोग्राम ऐसा लिखा हुआ है कि वहां से मैं पूरा का पूरा इसका कैलकुलेशन करूंगा पैकेज का, और उसको मैं बता दूंगा कि
इस ईयर के लिए वो कितना टैक्स पे करने के लिए लायबल है। मैं अपना पैकेज डालूंगा, मैं अपने लाइबिलिटीज डालूंगा, मेरे जो ये है जो भी एक्सपेंडिचर्स है और जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो सब का सब मैं इसमें इंसर्ट करूंगा एंड देन आई विल गेट एन अपडेट और एन आउटकम कि मुझको इस साल कितना टैक्स पे करना है। मतलब कोई नई चीज ये नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम श्योर ये बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये छोटे-छोटे अगर है सो यू कुड डू इट यूजिंग योर सिंगल सर्वर आल्सो। लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये आपका जो एक आइडिया था ये काफी बढ़ रहा है एंड नाउ वी हैव एन नंबर्स ऑफ यूजर्स जो आपकी सर्विस यूज कर रहे हैं। तब ये सिंगल सर्वर पे और सिंगल टीयर पे चलाना बार-बार आपकी एप्लीकेशन को क्रैश करेगा, जिससे आपके जो बढ़ते हुए यूजर्स है वो कम हो जाएंगे। दैट इज द रीजन व्हेन वी रिक्वायर्ड मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल सर्वर्स या इस तरह का जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को लगने लगता है। सेम चीज एयरलाइन टिकट के इसमें देखो, अगर आप एयरलाइन टिकट बुक करना है तो वो जो फर्स्ट ये जो होता है, लेट मी शेयर चेंज माय स्क्रीन व्यू। ओके वी I'll do this in the next session। 7 मिनट ही बाकी है, नेक्स्ट वाले इसमें करते हैं। I'll keep continue with this one। So the the server, the application server which I had, so let's open that one first। उससे शुरू करते हैं and then we'll discuss few more। Just give me a minute guys। I'll turn on my server on Azure। So this is the IP जहाँ पे मेरा सर्वर होस्टेड है। So now see this web page, ये मेरा एक सर्वर पे मैं रख सकता हूँ, ठीक है। And let's say this pricing, I am not sure मेरे पास यहाँ पर कुछ है because this is just a test server, टेस्ट वेबसाइट है। प्राइसिंग में मैंने कुछ ऐसा एक कर रखा है, कॉलम्स बनाए हैं कि प्राइसिंग में आप लोग यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स ये करो कि आपको एग्जैक्टली exactly चाहिए कि आप अपना इंफॉर्मेशन पूरा पुट इन करो कि दिस इज योर एक्सपीरियंस, दिस इज द ट्रेनिंग यू आर लुकिंग फॉर, ये सब करो और उसके बेस पे एक ऑटोमेटिक कोटेशन बन के आपको वहीं पर मिल जाए। दैट आई विल कॉल माई इंजन सर्वर, माई एप्लीकेशन सर्वर, जहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। सो आई कुड कीप दैट ऑन डिफरेंट सर्वर और आई कुड कीप इन द ऑन द सेम सर्वर। देन सॉरी डेटाबेस, now this is what it is, ठीक है। ये मैंने यहाँ रखा है कि anyone who comes here to my website और कुछ ये है क्या, ठीक है, I am looking for cloud infra training और cloud architect training, इस तरह का कोई मैसेज वगैरह करता है, ठीक है। तो ये सब तो दिख रहा है उसको, ये this is my UI, this is my front end server, ये सब मेरा front end server बता रहा है। but the moment I send this message is gone now, ये भेज दिया है, ये जो दिखेगा ना मुझको, ये मेरे डेटाबेस सर्वर पे दिखेगा। डेटाबेसेस होते हैं जहां पर पूरा डेटाबेस दिखता है, तो ये मेरे डेटाबेस पे दिखेगा। एक अगर मेरे पास एसक्यूएल डेटाबेस है तो वहां पर पूरे कॉलम्स बनते रहेंगे, ऐसे कि इतने इंक्वायरीज आई, ये न्यू है, इसका ये नाम है, ये इसकी कैटेगरी है। जिस भी टाइप का डेटा मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो मुझको उस तरह से डेटाबेस में दिखेगा। सो दिस इज हाउ इट इज, इसलिए हम लोगों को डेटाबेस सर्वर वगैरह अलग रखता है। बट दिस एप्लीकेशन द वन व्हिच वी आर लुकिंग एट, इसका मैंने डेटाबेस भी एक ही सर्वर पे होस्ट कर रखा है, इसका मैंने फ्रंट एंड भी एक ही सर्वर पे होस्ट कर रखा है, इसका बैक एंड भी एक ही सर्वर पे होस्ट कर रखा है। सबका सब कुछ नॉट ओनली वन टीयर, दिस इज कंप्लीटली ऑन वन सर्वर, एक ही सर्वर पे सब कुछ है। क्यों? बिकॉज दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। मुझको पता है कि यहाँ पर या तो मैं देखूंगा या कोई ट्रेनिंग के वक्त 2 4 5 लोग देख लेंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं देखने वाला है। डाउन भी हो जाता है तो वी विल कम्युनिकेट और विल से कि यार एक 1 बाय 1 करके देखते हैं, सब प्रैक्टिस करेंगे। बट नाउ इमेजिन कि ये जो है रातों रात कोई किसी का कोई वीडियो वायरल हो गया, किसी का कोई बिजनेस वायरल हो गया, कोई ऑनलाइन बिजनेस था, एंड नाउ थाउजेंड्स ऑफ पीपल और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आर हिटिंग दैट वेबसाइट, तब ये सिंगल सर्वर वाला काम नहीं चलेगा। तब मुझको मल्टीपल सर्वर्स लगेंगे, देन तब मुझको मल्टीपल टीयर्स भी लगेंगे। सो जो इसका एग्जांपल दे रहा था मैं, कोई टैक्स वाले ये देखते हैं, या टैक्स का ही नहीं है, कोई लोन का जो ये देखते हैं, लेट्स से लोन इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। सो दिस इज देखो इसका नाम ही इसने ईएमआई कैलकुलेटर दिया है, वी डोंट इवन नो कि किसकी तरफ से है ये, बट जो भी ये एप्लीकेशन चला रहा है ये इसकी तरफ से। तो ये जो मुझको दिख रहा है ये है यूआई, यूजर इंटरफेस। यहाँ पर मैं ये सारा डेटा जहां तक ये कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अ होम लोन, 60 लाख का एक होम लोन की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट मुझको बैंक ने बोला है कि 7.5 देगा, 10 ईयर मुझको 20 ईयर्स। तो ये जो पूरा इमीडिएटली रिजल्ट आ गया है ना मुझको, ये मेरे बैकएंड सर्वर ने मुझको करके दिया। ये सारा ये इतना क्विक कैलकुलेशन जो है
ये मेरे किसी बैकएंड सर्वर ने दिया और इमीडिएटली रिजल्ट मुझको यहाँ पर दे दिया, एंड आई कुड प्रिंट वगैरह, ये सारे जो फीचर्स है ये फिर मेरा फ्रंट एंड सर्वर दे रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में काम, यू कुड हैव इट, आई एम अगेन टेलिंग यू कि मे बी ये ऐसी साइट हो जिस पे कोई जाता ही नहीं है, उसको पता है कि मेरे यूजर्स इतने कम है कि मैं 2 सर्वर्स पे ही पूरा काम चला सकता हूँ, तो मे बी दिस पर्सन इज आल्सो रनिंग एक सर्वर पे ही पूरा काम चला रहा है। बट लेट्स से आप बैंक बाजार जैसा, बैंक बाजार काफी फेमस है, इतना एडवर्टाइज किया उन लोगों ने कि बैंक बाजार काफी फेमस है। गाइस, electricity has gone again. I hope you can hear me and see my screen. Hello. Yes, you can hear me, right? Nice. We can hear you now. Okay. Internet connection was lost, Wi-Fi was disconnected. So this is what it is. ये फिर से UI है आपका, इसके background में the moment you make these changes, background में changes हो गया, उसके आगे आप लोगों को email आएगा, कोई result मिलेगा, वो फिर backend server वगैरह सा होता है। Then बैंक बाजार के केस में इनके databases भी हो गए, ये सब आपका data जितना भी आप ये करते हो ना, database पूरा संभाल के रखता है, ultimately आपका data बेचेगा, यही इसका revenue model है। ये आपका डेटा जो है ये चेक करेगा, बिकॉज यहाँ पर आप ये सर्च कर रहे हो, इसका मतलब है कि भाई आप घर के लिए देख रहे हो, आपका फिलहाल कोई प्लान बन रहा है, आप एक पोटेंशियल कस्टमर हो, तो यही डेटा वो बैंक को बेच के अपना पैसा कमाएगा। इसके लिए उनको एक डेटाबेस होना बहुत जरूरी है। बैंक को ऐसी किसी तरह से आधा अधूरा डेटा नहीं बेच सकता है वो उठा के कि ठीक है इसमें से आप फेच करके ले लो, नहीं, एक प्रॉपर जो है एक स्ट्रक्चर डेटा वो सेल करेगी, उसके पैसे उनको मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट अ 3 tier एप्लीकेशन इज। आई हैव अ पावर कट इशू गाइस, सो इसको कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता है। So we have 2 minutes left. Any one of you have any questions? So we'll continue. अगर नहीं तो we'll stop it for today. Yesterday's recording I have already uploaded. आज की recording थोड़ी देर के बाद upload करूंगा once I have power back. Tomorrow also we will discuss, इसी line पे थोड़ा बहुत discuss करते रहेंगे। थोड़े internal चीजें बताऊंगा मैं कि इन applications को support करने के लिए आप लोग जो user बनता है, पूरा infrastructure बनता है, users वगैरह कैसे बनते हैं, active directory वगैरह कैसे होता है, and then from Monday towards we are starting with our cloud sessions. So anyone has any question for today? सोहेल भाई, इब्राहिम है। Yes, Ibrahim. सो इसको आर्किटेक्चर टायर भी बोलते हैं क्या? 3 टायर आर्किटेक्चर ऐसा कुछ? Yes, you मैंने एक can बार say सुना that. था। Yes, you can say that. हाँ, ओके, थैंक यू सर। So no questions. I hope. Still, if you have any questions, आप WhatsApp group पे ये कर सकते हो. We'll answer that. So see you guys tomorrow. Hopefully कल हमारा last session होगा infrastructure का, and from Monday towards we'll move to cloud. We'll start looking at Azure का portal वगैरह, वो सब हम start कर देंगे Monday से। इसका recording मैं upload कर दूंगा। This weekend, please guys spend some time, जितना हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा सा revise कर लो, तो Monday it will be a bit easier for us. And ठीक है, I'll stop the session. We'll cover rest of the things tomorrow. थैंक यू सर भाई। Bye. Thank you, sir. Bye bye. शुक्रिया सोहेल भाई। चलो, bye.